students. So now we are going to start a snap interview of mathematics for our student Sujit. Sujit, first of all, you tell me your BTech branch and about any interview call recently which you have got. Sir, I graduated from NSIT Delhi in mechanical engineering in 2021. I registered in several colleges, IISc, IITs, and now recently I got from call from ISC Bangalore in mechanical and smart manufacturing domains. And I have interview scheduled on 19th and 21st of this month. Okay. So Sujit, first of all, we have a function fx equal to sine mod x upon sine x, Okay, sir. where x not equal to n pi. Okay, fx equal to sine mod x upon sine x, where x is not equal to n pi. So Yes, draw sir. the graph of this function. So give me a moment for thinking. Sir, basically this graph will be sine x upon sine x for the values of x greater than 0. Draw the graph and show it to me. Okay. Yes, sir. Sir, if it is visible, then this is the graph. Okay. So is this a differentiable at pi? No, sir, it is not differentiable at pi because it is discontinuous. Okay. Can you tell me the range of this function? Write the range mathematically. Sir, its range Write is, the range mathematically in notebook and Yeah. show me. sir, its range is this -1 and 1 Okay. in curly braces. Okay. Now you tell me, what do you understand by regression? So regression is basically interpolating things from the past records, and it is basically drawing some kind of plot. Like 10 or 20 records are given in the earlier, so we are finding some of the relation, how x y is changing with respect to x for those 10 records, and we are interpolating things on for future on those basis of getting the straight lines equations. Okay. And now y equal to x square plus mod x. Yes, sir. Y equal to x square plus mod x. Draw it graphically. Sir, I think this must be its graph. Okay. Now, suppose we have a differential equation dy upon dx equal to x plus y plus x plus y whole square. We have a differential equation dy upon dx equal to x plus y plus x Yes, plus sir. y whole square, right? Yes, sir. Tell me
What is the degree of this differential equation? Okay. So the degree of this equation, I think, is 2. Degree is 2. Okay. And is this linear or non-linear equation? So this is linear. No, sir, this is non-linear. Why? Sir, because the dependent variable, that is y, is multiplying with itself, y square. Okay. So what approach you are going to use to solve this? Tell me the initial approach. Okay, sir. So I will consider x plus y as a v variable. Okay. So then differentiating both sides with respect to x, I will get dy by dx in form of v. That is x plus dv. That is dv by dx minus 1 will be equals to dy by dx. Okay. Okay. And now tell me, what is the use of curl of a vector field? Sir, curl is basically a description or an indicative that a vector is rotational or not. So how do you use it in mechanical engineering? Yes, sir. Basically, this is used in fluid mechanics domain, and it is used to find whether a fluid particle is rotational or not at any point. So what does the vector function represent? Whose curl do you compute? Sorry, sir, I am not getting question. Whenever you use this curl concept, Yes. you compute curl of vector field, right? Yes, sir. So what physical quantity is represented by that vector field? Sir, it is represented as vorticity. Vorticity. Yes, sir. Vorticity or circulation. Circulation. I am asking about the what quantity, physical quantity is represented by vector field whose curl you compute. So angular velocity or something. कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी वेक्टर f को रिप्रेजेंट करती है, उस f का कर्ल निकालते हो ना? हाँ सर. तो f क्या रिप्रेजेंट करता है वो f? सर हाँ, मतलब अच्छा, जिसका कर्ल हम निकाल रहे हैं उसको पूछना चाह रहे हो वो क्या होता है? हाँ. सर, सो सर बेसिकली that is the velocity vector वेलोसिटी वेक्टर ऑफ व्हाट? of the fluid particle. तो इतना स्ट्रेस क्यों इसमें? सर मैं थोड़ा समझ रहा था कि एंड प्रोडक्ट क्या आता है, उससे सर्कुलेशन आता है वो. एंड प्रोडक्ट कब बोला मैंने, क्या कहा? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको f से रिप्रेजेंट करते हो, क्या है वो? डेफिनेटली दैट इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल. और अगर उसका डाइवर्जेंस निकालते हैं उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? डाइवर्जेंस से सर, डाइवर्जेंस से मुझे वो पता है कि सोलिनॉइडल है या नहीं ये निकलता है, लेकिन मुझे उसका सिग्निफिकेंस आई डोंट हैव अप्लाइड इस इन द फिजिकल वर्ल्ड. अंडरस्टूड मैथमेटिकली. Now tell me, what is the meaning of dependent and independent events? Okay. So sir, there in the certain number of trials, suppose the second trial is dependent on first trial, the outcome of second trial is dependent on the outcome of first trial, then that is. मैंने event बोला है, मैंने trial तो बोला नहीं है. I am asking about dependent and independent event. Yes, why are you going on trials? Okay, so sir, event can be like dependent events are those whose outcomes are dependent on some other event that has happened earlier. Like, so how do we check mathematically whether two events are dependent or independent? Okay, so sir, probability of A given B and the product of probability of A, conditional probability of A given B multiplied by
the probability of B is equals if it, oh, sorry, just a minute. Yes, sir. Suppose the intersection of any two events and that probability is equals to basically the product of the individual events probability, then that is a independent event. ओके, सपोज हमारे पास 3 इवेंट्स हैं ए बी सी, Yes, sir. डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस एस, ठीक है। Okay. तो आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो जो सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा, और 3 इवेंट जो आपस में इंटरसेक्टिंग हो सकती है वो ड्रॉ करो उसके अंदर जल्दी से। एबीसी 3 इवेंट हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है, तो इन तीनों को ड्रॉ करो पहले। And sir, they are exhaustive events, A, B and C. मैं बोल रहा हूं दे कैन इंटरसेक्ट। एग्जॉस्टिव का मतलब बताओ, चलो क्या होता है। कलेक्टिव एग्जॉस्टिव इवेंट कौन सी होती है बताओ। सर आई थिंक एग्जॉस्टिव वो होती है जो कि पूरे सैंपल स्पेस को कवर करे। ओके, तो एग्जॉस्टिव नहीं है। हाँ, एग्जॉस्टिव नहीं है फिर तो। सर फिर तो ये आई थिंक दिस विल बी द, ओके, अब इसमें वो सेडेड रीजन ड्रॉ करो। इवेंट, एक इवेंट में बता रहा हूँ, उसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ यहाँ पे। ओके सर। एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, सेकंड, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, ये इवेंट अगर हमसे पूछा जाता है इसके लिए क्या सेडेड रीजन बनेगा, ये आपको ड्रॉ करके दिखाना है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर। सर दिस शुड बी द, ओके, इसको मैथमेटिकली लिख के दिखाओ। ओके सर। सर थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। Sir, this should be the mathematical answer. If it's not physical, I can speak as well. एक बात बताओ मुझे, Yes, sir. इवेंट्स में या सेट थ्योरी में जो सेट्स होते हैं उनके ऊपर प्लस ऑपरेशन कहीं लगता है क्या? सेट्स के ऊपर पढ़ा है आपने? 2 सेट के ऊपर ए प्लस बी। Sir, actually idea नहीं है मुझे। 11th क्लास में सेट थ्योरी पढ़ा होगा, वहां पे याद करो। ए प्लस बी कभी पढ़ा है क्या? सर लेकिन यहाँ पर मैंने प्लस नहीं लिखा है, यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन लिखा है। प्लस अभी लिखा दिखाओ जरा। हाँ मतलब वो एक इंडिकेट कर रहे हैं कि उसको एरिया को सब्ट्रैक्ट कर रहा है वो। तो प्लस आपने करा तो है वहां पे बीच में, प्लस ब्रैकेट के अंदर जो है प्लस लिखा हुआ है ना। ये तो सर इसकी जगह यूनियन लिख देता हूँ फिर। तो गलत, मतलब ये गलत है कि नहीं है? हाँ सर, ये अंडरस्टैंडिंग थी मेरी, लेकिन मैंने वो साइन गलत लिख दिया उसकी जगह। ओके ठीक है सुचित, अभी मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो हमने पूछा था उसका आंसर तो आपने करेक्ट दिया एब्सोल्युटली, ठीक है। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन रिग्रेशन का था वो भी चलो ठीक है। रिग्रेशन की डेफिनेशन को बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है। रिग्रेशन के बारे में जितना पढ़ लोगे उतना सही है, पूछा जा सकता है कहीं पे। और रैंडम वेरिएबल के बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है सर। ठीक है। अब जो आपने ग्राफ बनाया था एक्स स्क्वायर प्लस मोड एक्स का, तो इसमें कंफ्यूजन है। आप क्या करो, 2 पैराबोला बनाओ,
एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दोनों को एक ही प्लेन में ड्रॉ करो। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है वो 0 और -1 से पास होगा, वो मैंने ड्रॉ कर दिया, 0 और -1 से पास होने वाला। ये कौन सा है? मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है। यस सर। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वो होगा जो 0 और -1 से पास होगा, वो मैंने ड्रॉ कर दिया, यस सर। ठीक है। अब दोनों को जब ड्रॉ करोगे तो x अगर पॉजिटिव है, मतलब x पॉजिटिव है तो मोड x इक्वल टू x होगा। यस सर। तो राइट साइड में कौन सा वाला पैराबोला रखना है हमें और कौन सा हटाना है, बताओ जरा, दोनों में से चेक करो जल्दी से इसको, और तब ग्राफ बना के देखो। अगर x पॉजिटिव है तो मोड x इक्वल टू x हुआ ना, यस सर। तो फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हुआ ना, तो Yes, उस sir. पैराबोला का पोर्शन रहेगा कि नहीं रहेगा राइट साइड हाँ में? सर, तो वो अब अबव दी एक्स एक्सिस रहेगा तो मतलब। जो आपने ग्राफ बनाया वो सही है कि गलत है? हाँ सर, वो मैंने 1 को रूट मान लिया जबकि -1 है रूट। हाँ। ध्यान से करना है। यस सर। और दूसरा साइड तो सर वैसे बन जाएगा कि वो इवन फंक्शन है तो। अरे इवन नहीं है, दोबारा उसी तरीके से दूसरी साइड में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की ब्रांच लेनी है। सर वैसे भी कर सकते हैं ना कि वो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है, हाँ ये भी कर सकते हो, तो वो इवन हो गया। बिल्कुल कर सकते हो, एक ही साइड बना के उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे। बिल्कुल। ये ध्यान रखूंगा आपसे। छोटी छोटी गलतियां हैं इंटरव्यू में, यही तो मैटर करती हैं। अच्छा। फिर dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस वाई वाली अप्रोच आपने सही बताई, लेकिन आप डिग्री अगर 2 बताओगे तो आपको एग्जामिनर वहीं पे कहेगा कि बेटा घर चलो आपने। अरे dy अपॉन dx इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, इसकी पावर कितनी है? dy अपॉन dx की यहाँ पे 1 है, तो डिग्री 1 नहीं है क्या? हाँ सर। डिग्री का मतलब डेरिवेटिव जो होता है सबसे बड़े ऑर्डर का, उसकी पावर। सर इसमें कंफ्यूजन होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल वाई का भी कुछ देखते हैं ना डिपेंडेंट कभी। वेरिएबल का डिग्री में कुछ नहीं देखना, केवल जो देखना है वो डेरिवेटिव का देखना है। अच्छा। जैसे सर अगर y dy by dx के साथ मल्टीप्लाई हो जाए y इंटू कोई dy दिक्कत by नहीं, dx। डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री में अब केवल और केवल डेरिवेटिव्स के ऊपर नजर रखनी है बस। अच्छा। जितने भी डेरिवेटिव्स हैं सबकी पावर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर बना लो पहले तो, यस सर। किसी की पावर फ्रैक्शन में ना हो और नेगेटिव ना हो, ठीक है। और कोई भी डेरिवेटिव किसी रूट के सिंबल के अंदर ना हो, इतना ध्यान रखना है बस। और लीनियर के लिए क्या जरूरी है कि डिग्री 1 हो बस? लीनियर की कंडीशन तो बहुत सारी है, पढ़नी पड़ेगी आपको, रिवाइज करो इसको, ऑर्डर डिग्री लीनियरिटी को। ऐसा जरूरी है ना कि y और dy by dx साथ में मल्टीप्लाई नहीं होते? लीनियर का तो ठीक है आपका आंसर, वाई स्क्वायर है तो मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से डिफरेंट हो गई, नॉन लीनियर हो गई। हाँ। ठीक है, वाई की पावर या डेरिवेटिव की पावर 1 से डिफरेंट है तो नॉन लीनियर हो गई। तो सर या जैसे प्रोडक्ट है डेरिवेटिव का वाई के साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में, तब भी नॉन लीनियर हो जाएगी। तो डिग्री भले ही 1 हो लेकिन वो जरूरी नहीं है कि लीनियर हो तब भी? वो नॉन लीनियर हो सकती है, इसकी डिग्री 1 है लेकिन ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि y को भी देखा जाएगा लीनियर के लिए। लीनियर इक्वेशन की डिग्री हमेशा 1 होती है, लेकिन डिग्री 1 वाली इक्वेशन लीनियर या नॉन लीनियर दोनों हो सकती है, ठीक है। यस सर। यस सर। उसके बाद ये फिजिकल वाला भी आपने बहुत देर तक समझ ही नहीं पा रहे, वहां पे तो दिक्कत होगी ना जब मैं क्लियर बोल रहा हूं। डाइवर्जेंस जो है उससे हमें पता चलता है कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल नेचर का फ्लूइड का। उसके बाद डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट को भी जस्टिफाई नहीं कर पाए अच्छे तरीके से, आप पढ़ो उसको ध्यान से। और उसके बाद ये जो रिप्रेजेंटेशन लास्ट में कहा मैंने, ये भी गलत बनाया आपने भाई। एग्जैक्टली वन ऑफ देम अगर का मतलब है ओनली ए और ओनली बी और ओनली सी, और का मतलब यूनियन है। यस सर। अब ओनली ए का मतलब ए बट नॉट बी नॉट सी, तो ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, ये ओनली ए हो गया। और यूनियन ओनली बी का मतलब ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, फिर यूनियन ओनली सी का मतलब ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी। तो तीनों का यूनियन ही तो करना है, प्लस का यूज नहीं होता कहीं पे भी, ऐसे इवेंट के ऊपर प्लस थोड़ी लगेगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट होते, प्रोबेबिलिटी होती, तब प्लस लगता है। यस सर। चलो, तो समझ में आया क्या छोटी छोटी गलतियां होती हैं इंटरव्यूज के टाइम पे? हाँ सर। रिवाइज करो, ओके, ऑल द बेस्ट। सर रिवीजन के लिए किसी को योर पीडीएफ पे आपकी वीडियोज है उन्हें सारे देख लो एक बार अच्छे तरीके से, और डाटा साइंस और डिसीजन साइंस वाले फोल्डर में भी मिलेंगे आपको लेक्चर, वहां से देख लो और तैयार करो। प्लस जो पहले पढ़ा हुआ है ऑलरेडी उसको रिवाइज करो।
मैकेनिकल के आईएससी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं क्या सर मैथ्स के सवाल? मैकेनिकल में पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, ग्राफ तो डेफिनेटली पूछते हैं वो कोई ना कोई, मैट्रिक्स के अंदर से पूछ सकते हैं। मैंने अभी मैट्रिक्स तो ज्यादा पूछा ही नहीं है यहाँ पे कुछ, वो लीनियर अलजेब्रा पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। मैट्रिक्स, ग्राफ, डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस, 4 चीज पक्की करो अपनी, और प्रोबेबिलिटी। हाँ प्रॉब्लम। ठीक है, यस यस। चलो ओके। थैंक यू सर।